नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। NSC 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में और इसी के साथ करते हैं बुलेटिन का आगाज। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 17 से 19 दिसंबर तक जर्मनी के दौरे पर रहे थे। इस दौरान उन्होंने बर्लिन स्थित हर्टी स्कूल में छात्रों को संबोधित किया था। इस बातचीत का करीब 1 घंटे लंबा वीडियो कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में जारी किया है। वीडियो में राहुल गांधी ने बीजेपी पर भारतीय संविधान को खत्म करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बीजेपी राज्यों की समानता, भाषाओं की समानता और धर्मों की समानता के विचार को खत्म करने की बात कर रही है। बीजेपी ने देश की संस्थाओं पर भी पूरा कब्जा कर लिया है। राहुल ने आगे कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाएं स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रही हैं। सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों का राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। एजेंसियां सिर्फ विपक्षी नेताओं पर केस दर्ज कर रही हैं, भाजपा नेताओं पर कोई दर्ज नहीं किया जाता। There is a wholesale capture of our institutional framework. When you look at our intelligence agencies, you look at the CBI, you look at the ED, they've been weaponized. Look at the number of cases that the ED and the CBI have against BJP people. You'll find the answer 0, right? And look at the number of cases they have against people who oppose them, and you'll find that pretty much most of them are political cases. And so there is a weaponization of the institutional framework. There's a capture of the institutional framework. If you're a large businessman and you try to support the Congress party, you're threatened. The ED, the CBI, these people land up. So there is an atmosphere in India where the institutions are not performing the role that they should be performing. From our perspective, Congress perspective, we helped build the institutional framework. So we never viewed it as our own institutional framework. We viewed it as the institutional framework of the country. That's not how the BJP sees it. The BJP views the institutional framework of India as belonging to them. And so they use it as a tool. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने IIT बॉम्बे में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि भारत को आतंकवाद से निपटने के लिए ऑपरेशन सिंदूर जैसी कम समय की तेज सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। साथ ही पड़ोसी देशों के साथ जमीनी विवादों के कारण लंबे समय तक चलने वाले युद्ध के लिए भी तैयार रहना जरूरी है। उन्होंने कहा कि मल्टी डोमेन ऑपरेशन अब एक विकल्प नहीं बल्कि एक आवश्यकता होगी, जहां एक डोमेन का प्रभाव तुरंत दूसरे डोमेन पर महसूस किया जाएगा। जनरल चौहान ने पाकिस्तान या चीन का नाम लिए बिना कहा कि भारत को किस तरह के खतरों और चुनौतियों के लिए तैयार रहना चाहिए। ये 2 तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। हमारे दोनों विरोधी परमाणु हथियार संपन्न देश हैं, इसलिए हमें प्रतिरोध उस स्तर का उल्लंघन नहीं होने देना चाहिए। The question is, what kind of threats and challenges India should be prepared for? I think this should be based on 2 major facts. One is that both our adversaries one is a nuclear weapon state and other is a nuclear armed states. So hence we should not allow that level of deterrence to be breached. And second, we have territorial disputes with both of them. Hence, in my view, we should be prepared to fight short duration, high intensity conflicts to deter terrorism, something like Operation Sindoor, that's one. Second, we should be prepared for a land-centric, long duration conflict because we have land disputes, yet try and avoid it. Third, we must exploit new domains and create asymmetry with our weaker adversary and yet not allow these asymmetries to be exploited by other nations. Terrorism and gray zone warfare maybe will remain a threat and will require both defensive and offensive response. Today, we are at a cusp of a third revolution in military affair, and I have been calling it convergence warfare. This is happening because a number of technologies are simultaneously affecting the nature and character of warfare both. Earlier, there were few technologies were influencing how wars were fought, but today there are a number of technologies. It could be artificial intelligence, machine learning, edge computing, quantum, hypersonics, advanced materials, robotics. So a number of them are influencing warfare together. And this is going to change the speed of warfare. So as Indian Armed Forces, we must attempt to maintain technological asymmetry in new domains to remain combat ready. If I were to now summarize
As to what kind of an warfare, character-wise, will it be? I can say that these will be conducted simultaneously across multiple domains to achieve faster decision-making and quick victory. So multi-domain operations will no longer be an option, but a necessity, where effects of one domain will be immediately felt onto the other domain. Multi-domain operations will also require multi-domain capabilities and cross-domain control, command and control. This will require extensive coordination and control between not only Army, Navy, and Air Force, but also cyber forces, space forces, and forces which are operating in the cognitive domain. As I said, warfare in the new domains is faster and smarter. It's also shorter in duration, and the tempo of that warfare is very, very high. Decisions are compressed in time, and effects of that war are felt almost instantaneously. This was clearly visible in Operation Sindoor, a war which lasted only about 4 days, giving India a decisive victory. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अल्पसंख्यकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। ममता बनर्जी ने नेताजी इंडोर स्टेडियम में तृणमूल कांग्रेस के बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि मैं अल्पसंख्यकों से कहती हूं कि कृपया एकजुट हो जाए। ये फैसला आप पर है। बीजेपी अपने पैसे की ताकत से आपको बांटने की कोशिश कर रही है। मैं साफ तौर पर आपसे कहती हूं, एकजुट हो जाइए। उन्होंने आरोप लगाया बीजेपी बंगाल में मुसलमानों के बीच फूट डालने की कोशिश कर रही है। इस दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि नेता नहीं, केवल जमीनी स्तर के तृणमूल कार्यकर्ता ही बीजेपी की बंगाल में पैर जमाने से रोक सकते हैं। রোহিঙ্গা কটা খুঁজে পেলে বলো? বিহারেও বলেছিলে খুঁজবো ইটিয়া, মণিপুরে কেন হলো না এসআইআর? নাগাল্যান্ডে কেন হলো না? মিজোরামে কেন হলো না? মেঘালয়ে কেন হলো না? আমি এখনো বলছি বাংলায় মতুয়া থেকে শুরু করে যারা আছেন কোনো ভয় পাবেন না। আমি সংখ্যালঘুদেরও বলছি সিদ্ধান্ত নিন। বিজেপি আপনাদের মধ্যে বিভাজন করার চেষ্টা করছে টাকা দিয়ে। আমি পরিষ্কার বলছি, আপনারা নিজেরাও সংঘবদ্ধ হন। তপশিলি বন্ধুরা আমার সংঘবদ্ধ হন, আদিবাসীরা সংঘবদ্ধ হন, পাহাড় জঙ্গল সুন্দরবন সাধারণ মানুষ খেটে খাওয়া মানুষ সংঘবদ্ধ হন। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार द्वारा अरावली पर्वतमाला की परिभाषा में बदलाव को लेकर कड़ा विरोध जताया है। गहलोत ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के दावों को पूरी तरह भ्रामक और तथ्यों से परे बताया है। पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि मंत्री भूपेंद्र यादव, आप राजस्थान से हैं। संरक्षित क्षेत्र के नाम पर अरावली में केवल 0.19% नई माइनिंग का झूठ मत बोलिए। जून 2025 में आप सरिस्का का संरक्षित क्षेत्र बदलकर खनन शुरू करना चाहते थे। अब इसी सरिस्का मॉडल पर ही भविष्य में बाकी अरावली का संरक्षित क्षेत्र बदलेगा। भूपेंद्र यादव जी, आप राजस्थान से हैं, आपका सम्मान करते हैं, परंतु जिस प्रकार से आप गुमराह करें पब्लिक को, 0.19% एरिया ही इफेक्ट होगा अरावली माइनिंग से, ये अपना आप में भ्रमित करने वाला आपका बयान है। कौन विश्वास करेगा आप पे? जिस प्रकार आपने सीसी को खत्म किया है, मेरा मुख्य आरोप आप पे ये है, सेंट्रल एम्पावर कमेटी जो 2002 में बनी थी, उसको आपने 21 साल बाद में 2023 में समाप्त कर दिया। वो कमेटी इतनी पावरफुल थी कि पूरे देश के जो एरियाज हैं, सब लोग एक कॉन्फिडेंस रखते थे उसके अंदर, और सीधी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को करती थी। दुर्भाग्य से आपने उस समिति को समाप्त कर दिया जो सीधी रिपोर्ट करती थी सुप्रीम कोर्ट को, और आपने वही सीसी नाम देके अपने भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय की कमेटी बना दिया, जिसके पास कोई पावर नहीं है। वो रिपोर्ट देती है, नॉमिनेशन भी आप करते हैं, मेंबर रिपोर्ट देती है आपको,
और आपके ऊपर है कि आप उस रिपोर्ट का क्या करें। उसी से शक पैदा हो गया कि आपकी मंत्रालय का, आप सबका जो है, जो विश्वास डगमगाना लग गया। क्योंकि एक ऐसी कमेटी थी वो, जो किसी की नहीं सुनती थी। उस कमेटी के आधार पे तो जनार्दन रेड्डी जी एक थे मंत्री कर्नाटका के, उनको जेल जाना पड़ा, सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया। इतनी पावरफुल कमेटी थी, आपने उसी को समाप्त कर दिया, तब भी शक पैदा हो गया। और आपने जो अभी सरिस्का के साथ अन्याय किया है, सरिस्का के जो प्रोटेक्टेड एरिया, उसको आपने समाप्त करने के लिए जो चाल चली है, और जिस प्रकार से आपने आनंद फानन में जो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट था उसको जो बदलने का प्रयास किया, जिससे कि वहाँ माइनिंग शुरू हो सके। मैंने सुना था 50 माइन्स थी वहाँ पर। उसके कारण और लोगों को वहाँ कई तरह के संदेह पैदा हुए। बल्कि एक इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि मिस्टर राठौड़ नाम के व्यक्ति ने तो पीएमओ में शिकायत की थी कि बहुत बड़ा करप्शन हो रहा है यहाँ पर सरिस्का के अंदर। ये नौबत क्यों आई आपके रहते हुए? नौबत क्यों आई? 24, 25, 26 जून को, इसी 24, 26 जून को 2025 के अंदर 3 दिन में ही राजस्थान वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने रिपोर्ट बनाई, और नेशनल टाइगर प्रोजेक्ट की जो कमेटी होती है उसके अंदर ही पास हो गया। और उसके बाद में नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड जो है उसने भी ठप्पा लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया। आप सोचिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार कमेंट किए आपके ऊपर, आपके ऊपर मतलब आपकी मंत्रालय के ऊपर, 6 अगस्त को जो कमेंट किए हैं, वो एक प्रकार से आपको सोचना समझना पड़ेगा कि नौबत क्यों आई कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको फटकार लगाई है बुरी तरह से और उसको रोक दिया है। उसी से मालूम पड़ता है कि जो आरोप करप्शन के लगते थे और ज़्यादा पुख्ता हो गए। मैं भी राजस्थान का मुख्यमंत्री रहा हूँ 3 बार। मुझे मालूम है कि फॉरेस्ट के अंदर, पर्यावरण के अंदर जितने भी मामले होते हैं, उसमें दिन नहीं, महीने नहीं, कई बार ज़्यादा समय लग जाता है, साल लग जाता है, 2 साल लग जाता है उसकी कार्रवाई होने के अंदर। इतना स्ट्रिक्ट कानून है पर्यावरण के और फॉरेस्ट के और आपके माइनिंग के, और अब 3 दिन में पूरी फाइल चला करके रिकमेंड कर दिया सुप्रीम कोर्ट को। तो ये जनता इन बातों को समझती है, और कृपा करके आप भ्रम फैलाना बंद करें। आप और आपके मित्र राजेंद्र राठौड़ जो है राजस्थान के अंदर 6 पेज का आप प्रेस नोट जारी कर रहे हो अरावली को लेकर के। अरे 6 पेज का, अरे अगर तथ्य हो, सच्चाई हो, 1 पेज सफिशिएंट होता है, 1 पेज। तो 6 पेज में आपका कदम देखा कि प्रेस नोट आ रहे हैं, इसलिए मतलब आप गिल्टी कॉन्शियस है और जनता आपको माफ नहीं करेगी। अरावली पहाड़ियों को लेकर इन दिनों देश भर में बवाल मचा हुआ है। इस पर्वत श्रृंखला को लेकर चल रही चर्चाओं पर अब पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने इसको लेकर बनी भ्रम की स्थिति को पूरी तरह साफ कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पर्यावरण मंत्री ने अपनी बात देश के सामने रखी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अरावली क्षेत्र में किसी भी तरह की कोई छूट नहीं दी जा रही है, न भविष्य में इस तरह की छूट दी जाएगी। कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। पहली बात, अरावली भारत के 4 राज्यों में है, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात। टोटल अरावली 39 डिस्ट्रिक्ट्स में है। अरावली की पिटीशन 1985 से चल रही है। इस पिटीशन में चलने के बाद अरावली में माइनिंग के स्ट्रिक्ट नियम होने चाहिए, इसके हम भी पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चारों राज्यों को कहा कि अरावली की सेम डेफिनेशन होनी चाहिए। सेम डेफिनेशन में 100 मीटर को, जो कि
1968 का जो जियोलॉजी का स्टडी है रिचर्ड मॉर्फी, उसके कारण है। कुछ YouTube चैनल ने और कुछ लोगों ने एक कंफ्यूजन खड़ा कर दिया कि 100 मीटर का अर्थ होगा टॉप के 100 मीटर। ऐसा नहीं है। उसका जो बेस स्ट्रक्चर है, जो पर्वत का बेस स्ट्रक्चर है, अगर वो जमीन के अंदर भी 20 मीटर है, वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है। तो जो 100 मीटर का प्रोटेक्शन है, जो लोगों ने कंफ्यूजन करा कि मतलब ऊपर का 100 मीटर है, नीचे खुदाई कर सकेंगे, वो नहीं है। मैं आपको फिर क्लियर कर रहा हूं। 100 मीटर का अर्थ है टॉप 100 मीटर से बॉटम के अंदर तक जो उसका पूरा फैलाव है। पहाड़ी तो ऐसे होती है, तो उसका बॉटम तो बड़ा होता है, जहां तक उसका बॉटम जाएगा वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है। और अगर एक पहाड़ी और दूसरी पहाड़ी के बीच में 500 मीटर का ही गैप है, तो वो जमीन भी अरावली रेंज मानी जाएगी। इस डेफिनेशन के आने के बाद 90% से ज्यादा एरिया प्रोटेक्टेड एरिया में आ गया। 90% से ज्यादा। मेरा ये स्टेटमेंट लिख लीजिए, टोटल अरावली का एरिया 1,47,000 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके बाद केवल अभी की जो मेरे पास 39 डिस्ट्रिक्ट है, केवल 217 किलोमीटर, मतलब 2% में ही माइनिंग हो सकती है, और वो भी हर तरीके से नहीं हो सकती। उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि आपने जैसे सारंडा और झारखंड में एक पूरा पहले माइनिंग प्लान बनाया है, वो प्लान तैयार करिए। वो प्लान तैयार करने के बाद भी ICFR जो इंस्टीट्यूशन है उसकी परमिशन होगी, उसके बाद ही परमिशन मिलेगी। दिल्ली में कोई भी माइनिंग अलाउ ही नहीं है, ना होगी। मैं फिर दोहरा रहा हूं, दिल्ली के अरावली हिल्स में माइंस पूरी तरीके से बैन है। अरावली में लगभग 20 से ज्यादा फॉरेस्ट रिजर्व प्रोटेक्टेड एरिया वो एज इट इज रहेंगे। तो रिजर्व एरिया, प्रोटेक्टेड एरिया, इवन 100 मीटर भी पहले क्या होता था, जो लोगों ने करा था कि टॉप को छोड़ के नीचे खुदाई करते थे, तो वो एक तरीके से उसके चारों तरफ करते थे। अब वो भी नहीं कर सकेंगे। तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है रिचर्ड मार्फी, उसको दिया है। उसके बाद भी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। हम पूरी तरीके से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। पिछले 2 साल से लगातार स्वयं प्रधानमंत्री जी ने अरावली में वृक्षारोपण किया है। ये सरकार पिछले 2 साल से ग्रीन अरावली का मूवमेंट चला रही है। मैंने खुद ने पिछले दिनों उदयपुर में सारे DFOs की, मतलब चारों जिलों के 39 DFO की मीटिंग करी है। हम हर डिस्ट्रिक्ट में अरावली की नेटिव स्पीशीज का एक नर्सरी लगा रहे हैं। हम ग्रीन अरावली के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये एक झूठ फैलाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो रिपोर्ट है, ये 2006 से राजस्थान में ऑलरेडी लागू है। इसमें कुछ भी एडिशन नहीं किया गया, बल्कि अरावली के टॉप से लेके और जमीन तक, मतलब जमीन से पूरा ऊपर। राजस्थानी कला जगत की मशहूर हास्य कलाकार दीपक मीना, जिन्हें लोग पन्निया सेपट के नाम से भी जानते हैं, उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनके 23 वर्षीय पुत्र गोदीप मीणा ने झोटवाड़ा इलाके की एक होटल में सुसाइड कर लिया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे और कला जगत में शोक की लहर दौड़ गई। वही पुलिस जांच में जुट गई है। घटना के बाद राष्ट्रीय करनी सेना के अध्यक्ष शिव सिंह शेखावत भी मौके पर पहुंचे और शोकाकुल परिवारों को सांत्वना दी। हमारे राजस्थान के मशहूर लोक कलाकार पन्निया सेपट जी के बेटे ने आत्महत्या की। ये बहुत ही दुखद खबर है। पन्निया सेपट जी ने हमेशा राजस्थान के वासियों को हंसाया, उनको इतना प्यार दिया। आज उसी के परिवार में जो ये पीड़ा, ये हानि हुई है, ये बहुत ही दुखद है। राजस्थान सिनेमा हमेशा उस दुख की घड़ी के उस परिवार के साथ खड़ा है। और साथ में मेरे राजस्थान के मैं सभी युवाओं से एक अपील करता हूँ कि यार, जीवन में हर इंसान के कहीं ना कहीं कुछ समस्या होती है। हर इंसान के लाइफ में बहुत प्रॉब्लम होती है।
तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना जीवन खत्म करो। उस समस्या से आप लड़ सकते हो अगर आप उस समस्या को अपने परिवार के सामने, अपने दोस्तों के सामने अगर शेयर करो तो। जरूरी नहीं कि आप अपना जीवन ही खत्म कर लो, ऐसा मत करो। ऐसे करने से आप तो चले जाते हो, लेकिन पीछे आपका पूरा परिवार है, आपके दोस्त हैं, पूरा समाज है जो जिस स्थिति से गुजरता है वो बहुत ही याद पीड़ादायक है। ऐसा मत करो। मैं पुण्य आत्मा को प्रार्थना करता हूँ श्री राम भगवान से किसी चरणों में ले और उस परिवार को इस दुख की घड़ी में सहन करने की क्षमता मिले और पूरा राजस्थान का सिनेमा पन्या शेखर जी उनके परिवार के साथ। अजमेर जिले में राजनीतिक रंग भी इस बार कुछ अलग देखने को मिला। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित एक धरना स्थल पर पीसीसी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मंच पर डांस कर सभी की निगाहें अपनी ओर खींच ली। अजमेर जिला कांग्रेस कमेटी ने यह धरना आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आयोजित किया था। जैसे ही डोटासरा मंच पर पहुंचे, उन्होंने डीजे की धुन पर जमकर ठुमके लगाए। इधर पंजाब के तरनतारन में एक युवती की हत्या की गई है। बताया जा रहा है कि युवती ब्यूटिशियन का काम करती थी। काम खत्म करने के बाद वे घर लौट रही थी। बस स्टैंड से उतरकर ऑटो का इंतजार कर रही थी कि बाइक सवार दो युवक वहां आए और युवती को गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद युवक वहां से फरार हो गए। आसपास के लोगों ने युवती को तुरंत इलाज के लिए नजदीकी हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी अतुल सोनी, जगजीत सिंह और पुलिस मौके पर पहुंच गई और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। एक ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਸੀ ਥਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਖੇੜ ਸਿੰਘ ਬਰਵਾਲਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਨਵਰੂਪ ਕੌਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਲੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਹੈਗਾ ਅਰਜੁਨ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਵੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੜਕੀ ਰਸੂਲਪੁਰ ਅੱਡੇ ਤੇ ਆਈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਇਸ ਲੜਕੇ ਨੇ ਜੋ ਅਰਜੁਨ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈਗੀ। तो जो लड़की ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਪਰ FI ਨੰਬਰ 289 ਤੇ 307 ਦੀ ਇਹ ਲੌਂਚ ਕੀਤੀ गई। सो अजय इधर यूपी के बांदा में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा हटाए जाने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। ये प्रतिमा नगर पालिका द्वारा इंदिरा पार्क के सौंदर्यीकरण कार्य के तहत हटाई गई थी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ये चेतावनी दी है कि यदि एक सप्ताह के भीतर पार्क में नई प्रतिमा स्थापित नहीं की गई तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। उन्होंने बीजेपी सरकार पर महापुरुषों को अपमानित करने का भी आरोप लगाया है। आपको मालूम है कि आज हम ये इंदिरा पार्क अमरटा की चौराहे में बांदा शहर में इंदिरा पार्क स्थापित था और यहाँ पर हमारी इंदिरा जी की मूर्ति लगी थी। लेकिन विगत लगभग 4-5 महीनों से इसके सुंदरीकरण के नाम पर इसको एक तो छोटा मैदान कर दिया गया है, इसको अगल बगल से कम कर दिया गया। दूसरी बात ये कि हमारी मूर्ति को, जो हमारी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उनको ऐसे लवारिस फेंक दिया गया है। मतलब किसी प्रकार के इनके अंदर ये भी नहीं है कि महापुरुषों को कैसे सम्मान किया जाता है। सिर्फ ये उन्हीं का सम्मान करते जिनसे इनको कुछ लाभ मिलता है, जातवाद का काम करती हैं। इस सरकार में महापुरुषों का कोई सम्मान नहीं है। दूसरी बात ये कि इन्होंने कहा कि मूर्ति रखाएंगे। अब मूर्ति कब रखाएंगे, आपने निकाल के फेंक दिए। लगभग 3 महीने हो रहे हैं, कुछ काम नहीं हो रहा। आपने देखा कि स्थिति यहाँ की कितनी खराब है।
मतलब सिर्फ उपेक्षा का शिकार ये पार्क बना हुआ है। न यहाँ की कोई नगर पालिका ध्यान दे रही, न अधिकारी ध्यान दे रहे। हम कई बार हम इस मामले को लेकर के मिलते हैं अधिकारियों से, बस यही आश्वासन की ठीक जल्दी करवाते हैं और काम पूर्ण किया जा रहा है। इसलिए हम लोग की मांग है कि शीघ्र इसकी 1 हफ्ते के अंदर इसको मूर्ति को लगवाया जाए और साफ सुथरे किया जाए, अन्यथा आंदोलन। सर बताना चाहेंगे कि ये जो पार्क है काफ़ी पुराना था और उसमें पहले कम जो है इसकी बाउंड्री थी, इस वजह से वहाँ पे अराजक तत्व तो पहुँच जाते थे और क्षतिग्रस्त होने की संभावना थी, जिसके दृष्टिगत इसको आदर्श नगर योजना में सम्मिलित करके पार्क का जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है। जो ठेकेदार है उसके द्वारा अवगत कराया गया है कि इसको सुरक्षित स्थान पे जो मूर्ति है उसको रखा गया था। रात्रि में कुछ अराजक तत्वों द्वारा इसको जो है इसका डिस्प्लेसमेंट कर दिया गया है, जिसकी जानकारी होने पर पालिका प्रशासन ने इसको वहां से उठवा करके सुरक्षित स्थान पर रखवा दिया गया है। किसी भी प्रकार की मूर्ति के साथ किसी प्रकार के अनादर की नगर पालिका द्वारा कोई मतलब न तो प्रयास किया गया है, न ही इसकी कोई किसी को अनुमति दी जाएगी। और वहाँ पे एक जो कार्य होना था उसकी ऊंची बाउंड्री वाल होनी है और उसका पोडियम नया है, वो निर्मित हो गया है। शीघ्र ही अच्छी और सुरक्षित मूर्ति वहाँ पे स्थापित हो। सर जो कांग्रेस ने आरोप लगाया है लेकर क्या कहते हैं? इस संबंध में कहना चाहेंगे कि ये जो वहाँ पे जो अराजक तत्वों द्वारा किया गया है उसकी निंदा करते हैं और भविष्य में इस बात की हम इसको सुनिश्चित करेंगे कि इस प्रकार की चीज़ें न रहें और इसको जल्दी से जल्दी नई मूर्ति वहाँ पे लगा दी जाएगी। इधर हरिद्वार से आ रही एक निजी बस ने अहले सुबह कोहरे के बीच सड़क पर कहर बरपा दिया। सहजरासर और कालू गांव के बीच तेज रफ्तार बस ने एक साथ आधा दर्जन से अधिक गायों को टक्कर मार दी, जिससे 7 गायों की मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा घने कोहरे के कारण हुआ। टक्कर के बाद भी बस चालक ने वाहन नहीं रोका और सवारियों से भरी बस को लेकर मौके से फरार हो गया। हादसे के बाद सड़क पर और इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने फ्लोरिडा स्थित मार-ए-लागो रिसोर्ट में एक बड़ी और ऐतिहासिक घोषणा की है। ट्रंप ने अमेरिका नौसेना को और अधिक शक्तिशाली बनाने की दिशा में कदम उठाते हुए गोल्डन फ्लीट की शुरुआत का ऐलान किया है। इस योजना के तहत अमेरिकी नौसेना के लिए 2 नए विशाल बैटलशिप बनाने की मंजूरी दी गई है। खास बात यह है कि इन युद्धपोतों को ट्रंप क्लास नाम दिया जाएगा। इस क्लास का पहला युद्धपोत USS डेफिएंट होगा। इस मौके पर ट्रंप ने गर्व से कहा, यह अब तक के सबसे बड़े, सबसे तेज और 100 गुना ज्यादा पावरफुल बैटलशिप होंगे। Great honor to announce that I have approved a plan for the Navy to begin the construction of 2 brand new, very large, the largest we've ever built, battleships. You know, you used to build the Iowa, the Missouri, the Wisconsin, the Alabama, many others. We had big battleships. These are bigger, but they will have 100 times they'll be 100 times the force. इधर दिल्ली स्थित चीनी दूतावास ने भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाते हुए चीन ऑनलाइन वीजा एप्लीकेशन सिस्टम की शुरुआत कर दी है। शेंझेन स्थित चीनी ऑनलाइन पोर्टल ग्रेटर बे एरिया के मुताबिक नया ऑनलाइन सिस्टम पहले की तुलना में अधिक सरल और सुविधाजनक है। जीबी की रिपोर्ट में कहा गया है कि पात्र आवेदक पर्यटक, व्यावसायिक, छात्र वीजा के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से फॉर्म भर सकते हैं, दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं और बायोमेट्रिक प्रक्रिया भी अपना सकते हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक बंगाली हिंदू दीपू चंद्र दास को पीटकर जिंदा जलाने की घटना से पूरी दुनिया गुस्से में है। देश के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसका असर साफ देखा जा सकता है। ताजा जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में भी बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर वीएचपी कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर कार्यकर्ताओं ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की बात कही। इसके साथ साथ बांग्लादेश में फंसे हिंदू विशेष तौर पर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों को सुरक्षा देने का भी मुद्दा उठाया गया। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने महाकाल मंदिर पहुंचकर बाबा महाकाल का पूजन दर्शन कर अभिषेक किया और देश की जनता की सुख, शांति, उन्नति की कामना की। गर्भगृह में दोनों ने महाकाल का अभिषेक किया और पुजारी आकाश ने 20 मिनट तक पूजन कराया। ये
पूजन यशकृति के लिए किया जाता है। के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार श्रीमान जेपी नड्डा जी आज यहाँ पधारे हैं। हमने सबने मिलकर के बाबा महाकाल का आशीर्वाद भी लिया और बाबा की कृपा से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश भर में भारत का मान सम्मान और एक अलग प्रकार का भारत दुनिया के सामने जाना जा रहा है। ऐसे समय में जब माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी पधारे हैं, उनके माध्यम से 2 नए मेडिकल कॉलेज की आज आधारशिला रखी जा रही है। धार और बैतूल पीपीपी मॉडल पर ये 2 नए मेडिकल कॉलेज के माध्यम से अब हमारे यहाँ आज के बाद ये जब बनेंगे तो। इधर राजस्थान के धौलपुर जिले के निहालगंज थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पीड़ित से 11,40,000 रुपए की धोखाधड़ी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो डॉक्टर बनकर दवाइयों की सप्लाई करने का झांसा देकर धोखाधड़ी करता था। पुलिस ने आरोपी से करीब 9 लाख रुपए रिकवर कर लिए हैं। थाना प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि धोखाधड़ी करने वाले आरोपी अरशद अली खान पुत्र मोहम्मद मियां खान निवासी इकरी थाना आलापुर जिला बदायूं उत्तर प्रदेश निवासी सब्जी मंडी पान दरीबा चारबाग राजेंद्र नगर लखनऊ को गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान में आए दिन हो रही सड़क दुर्घटनाओं में रोक लगाने के लिए धौलपुर आरएसी बटालियन की डिप्टी कमांडेंट सुरेश सांखला के नेतृत्व में उनके पुत्र और जवानों ने एक प्रभावशाली नाट्य रूपांतरण कर आमजन को यातायात नियमों की जानकारी दी है। इस नाटक के माध्यम से वाहन चलाने समय नशा नहीं करने, हेलमेट, सीट बेल्ट के अनिवार्य उपयोग, निर्धारित गति सीमा का पालन करने और यातायात नियमों की पालना का संदेश दिया गया। नाटक में नियमों के अनदेखी से होने वाले दुर्घटनाओं और उनके दुष्परिणामों के ना जाके सिर्फ धौलपुर को ही देखे तो धौलपुर में रोजाना ही बहुत सारे एक्सीडेंट होते रहते हैं और ये एक्सीडेंट उस वक्त घातक रूप ले लेते हैं जब ड्राइवर की लापरवाही होती है, यानी जब वो सीट बेल्ट ना पहने, हेलमेट ना लगाते हैं। इस वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट जो होते हैं वो घातक का रूप ले लेते हैं, इसमें मौतें भी होती है। तो अगर अपन इन थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखें, थोड़े से नियमों का ध्यान रखें तो एक्सीडेंट को घातक एक्सीडेंट होने से बचा सकते हैं। तो यही हम एक मैसेज देना चाहते थे कि एक्सीडेंट अपने हाथ में नहीं है, लेकिन ज़िंदगी और मौत का फैसला करते वक्त अपने को ये हेलमेट लगाना चाहिए, सीट बेल्ट लगाना चाहिए, शराब पी के गाड़ी मत चलाओ, ओवर स्पीड गाड़ी मत चलाओ, क्योंकि इसका जो परिणाम होता है वो बहुत घातक होता है। उसके बाद में परिवार को बहुत कुछ भुगतना पड़ता है। यही हम एक मैसेज देना चाह रहे थे कि यातायात नियम जो भी बने वो। धौलपुर जिले के बाड़ी में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की है। बसड़ी रोड पर एक ढाबे पर छापा मारकर देसी और अंग्रेजी ब्रांड की शराब जब्त की गई। हालांकि कार्रवाई की भनक लगते ही आरोपी मौके से फरार हो गया। जिला आबकारी अधिकारी धौलपुर पवन शर्मा ने बताया कि आबकारी आयुक्त उदयपुर के निर्देश पर पूरे जिले में अवैध शराब की बिक्री की रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पहले मुखबिर तंत्र से जानकारी जुटाई जाती है, फिर मौके पर जाकर कार्रवाई की जाती है। हमारे एक श्रीमान आबकारी आयुक्त महोदय उदयपुर के द्वारा एक विशेष निरोधात्मक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो अवैध होटल्स, अवैध जो स्पॉट्स हैं उनको जो बेच रहे हैं, जैसे राय स्वामी हो रही है, उनको अपन सेलेक्ट करके उन पर कार्रवाई करते हैं। इसी संदर्भ में बाड़ी में ये अपने पेट्रोल पंप के सामने एक रफीक ढाबे के नाम से लगातार अवैध की शिकायतें अपने को प्राप्त हो रही थी। इसी कंसर्न में हमने भी मुखबिरी कराई। मुखबिरी करा के बाद में यहाँ पे दबिश दी। दबिश कराने पे हमें यहाँ शराब बरामद हुई है और उसकी अपनी कार्रवाई की है। तो मुलजिम था वो मौके से फरार हो गया, जिसको अपन गिरफ्तार करेंगे। रफीक नाम का है, उसके कुछ डॉक्यूमेंट बरामद हुए हैं। धौलपुर जिले के मनिया थाना इलाके में एक खेत को लेकर विवाद के दौरान पथराव की घटना हुई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कुछ लोग छत से पड़ोसियों पर पत्थर फेंकते नजर आ रहे हैं। इसमें एक युवक
पहले छात्र नेता बताया गया है। पीड़ित पक्ष ने मनिया थाना पुलिस को लिखित रिपोर्ट दी है कि 22 दिसंबर को सुबह करीब 9 बजे गोकुल के मकान के पास मारपीट हुई और बचाव के दौरान पथराव किया गया, जिससे कई लोग घायल हुए। मनिया थाना प्रभारी नीरज शर्मा ने बताया कि दोनों पक्ष एक ही परिवार के हैं और खेत को लेकर विवाद है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच जारी है। धौलपुर कलेक्ट्रेट को एक बार फिर धमकी भरा ईमेल मिला है, जिसमें कलेक्ट्रेट भवन को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इस धमकी के बाद पुलिस प्रशासन तुरंत एक्टिव हो गया और कलेक्ट्रेट परिसर को खाली करा लिया गया है। सुरक्षा के लिहाज से कलेक्ट्रेट से सटे पुलिस अधीक्षक एसपी कार्यालय को भी खाली करा लिया गया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भरतपुर से एक डॉग स्क्वाड टीम को जांच के लिए बुलाया गया है। पुलिस अधीक्षक विकास सागवान खुद पुलिस के साथ कलेक्ट्रेट परिसर की गहनता से जांच कर रहे हैं। इस धमकी भरे मेल के बाद जिले में हड़कंप मच गया और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। देखिए, रमेश कैना @outlook.com से एक बॉम्ब स्केयर जो है वो कलेक्ट्रेट कैंपस को प्राप्त हुआ है। उस बॉम्ब थ्रेट के अंतर्गत जो पूरा कलेक्ट्रेट परिसर है उसको अभी खाली कराया गया है। साथ ही जो भरतपुर से हमारी जोन की टीम है, वहाँ से बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड जो BDS टीम है और डॉग स्क्वाड है, उनको वो रवाना हो गए हैं अपनी टीम के साथ। पूरे परिसर को एक बार सैनिटाइज कराया जाएगा। और इधर श्रीगंगानगर में क्रिसमस डे पर बच्चों को सेंटा क्लॉज बनाने पर स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग ने आदेश में कहा है कि सेंटा क्लॉज बनने के लिए दबाव बनाना ठीक नहीं है। शिकायत मिलने पर स्कूल के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी अशोक वधवा ने यह आदेश 22 दिसंबर को जारी किया है, जिसमें सभी निजी स्कूलों को चेतावनी दी गई है। खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए NSC 9 न्यूज। नमस्कार।